फैसलाबाद गटी के इलाके में फुटबॉल मैच मुख्तलिफ क्लब्स की टीम की शिरकत। पाकिस्तान, वापडा, रेलवे, पाक आर्मी समेत दीगर महकमों के खिलाड़ियों की शिरकत। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। राम ने पीछे छोड़ कहते शाम को लै चलेंगे मोटरसाइकिल उठा फैसलाबाद गटी के इलाके में फुटबॉल मैच मुख्तलिफ क्लब्स की टीम्स की शिरकत। पाकिस्तान, वापडा, रेलवे, पाक आर्मी समेत दीगर महकमों के खिलाड़ियों की शिरकत। आपको बताते चले फैसलाबाद गटी के इलाके में फुटबॉल मैच मुख्तलिफ क्लब्स की टीम्स की शिरकत। पाकिस्तान, वापडा, रेलवे, पाक आर्मी समेत दीगर महकमों के खिलाड़ियों की शिरकत। आपको इस हवाले से बताते चलें गटी के इलाके में फुटबॉल मैच मुख्तलिफ क्लब्स की टीम्स की शिरकत। पाकिस्तान, वापडा, रेलवे, पाक आर्मी समेत दीगर महकमों के खिलाड़ियों की शिरकत। हो गया जी स्टार्ट। बाल लगा ठीक है। अली दा साडा लाइव ही किवें पढ़दा मेरे 115 इन्हें पेपर चेंज मेरे तो जिदन आए पेपर अभी जा रहे दफ्तर साढ़े इन्होंने नंबर ही नहीं जिन्हें का गुट पै गई जी गुट पै गई वो तो बस जी
کے دے جناب ਮੱਝ ਅਹਿਮਦ ਜਾਂ ਰੰਡੈਲੋ ਆ ਭਾਈ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਹਿਮਦ ਜਾਂ ਰੰਡੈਲੋ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਰੋਨਾਲਡੋ ਮੈਸੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪਾਪੜ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ दरियाए चनाब में जंग के मकाम पर पानी की सतह में कमी 35 से ज्यादा दही इलाकों में पानी खड़ा होने से इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। जंग में दरियाए चनाब में पानी की सतह कम होने लगी। हेड तरीमों पर पानी की आमद 1,24,000 क्यूसिक जबकि अखराज 1,06,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। ताहम दही इलाकों में सैलाबी पानी से धान की पनीरी, चारा और सब्जियां शदीद मुतासिर हुई। बिजली का निज़ाम मुअत्तल होने से इलाका मकीन पीने के साफ पानी से भी महरूम हो गए। उनका कहना था कि जानवरों के लिए भी पानी मैसर नहीं, जबकि फसलात तबाह होने से दूर दराज से चारा इकट्ठा करने पर मजबूर हैं। ہوں جنہوں نے ایک دو مجھے نہ ہوتا پیوا سن جنہوں نے 15-16 ڈوروں وہ کیوں پیوا پانی جو ہے وہ مطلب کہ گرم ہو رہا ہے وہ بھی فصلوں کو نقصان پہنچ رہا ہے مطلب کہ جو مکی تھی یہ دان وغیرہ ہو گیا عربی وغیرہ ہو گئی وہ بھی مطلب کہ نقصان ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر مشیر لائف سٹاک فیصل جبوانہ نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ پانی میں ڈوبے علاقوں میں کیمپ لگائے گئے ہیں جبکہ محکمہ لائف سٹاک کو بھی اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اوور آل ان پنجاب جو ہے ایک باقاعدہ طور پر کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو حالیہ بارشیں ہو رہی ہیں ان بارشوں کے نقصانات کے حوالے سے یا جو ہے فلڈ کے حوالے سے۔ فلڈ بھی جو ہے دو قسم کے، ایک اربن فلڈ کی بات ہو رہی ہے اور دوسرا روٹین کے فلڈز کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کمیٹی نے جو ہے اوور آل ان پنجاب تمام اضلاع میں انسٹرکشنز جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں کہ اگر کسی بھی حوالے سے کہیں بھی کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو حکومت پنجاب کی طرف سے ہدایات ہیں کہ ان لوگوں کو مدد کی جائے۔ احمد پور سیال میں بھی سیلابی پانی نے فصلوں کو تباہ کر دیا۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کی جانب سے نہ تو آگاہی دی گئی اور نہ ہی سیلاب کے بعد کوئی انتظامات کیے گئے۔ مشکلات ہے، پانی بڑی ہلاکت ہے، بہت ساری مال منی رزق اپنا جامن آمن رستہ ہی ان کوئی نہیں، کھا پی ان تنگ آئیں۔ سیلاب متاثرین نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت فوری ریلیف پیکیج کا اعلان کرے تاکہ ان کے مالی نقصان کم ہو سکیں۔ کیمرہ مین وسیم عزیز اور ساتھی رپورٹر مبشر حسن نقوی کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1112 علی حسنین نے دریائے چناب سے ملحقہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ 12 مختلف جگہوں پر ریسکیو پوسٹیں قائم کر کے کشتیاں پہنچا دی گئی۔ ڈی او علی حسنین کہتے ہیں کہ ریسکیو سٹاف کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ 2 دریا گزرنے کی وجہ سے جنگ ہائی رسک زون ہو جاتا ہے۔ ریسکیو 1112 کا سٹاف دن رات عوام کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ آپ کو اس حوالے سے بتاتے چلیں، اہم خبر ہے جنگ میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1112 علی حسنین نے دریائے چناب سے ملحقہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ حالیہ ہونے والی بارشوں کی وجہ سے چنیوٹ کے علاقے کمر ٹاؤن میں مقیم رفیہ بی بی کے مکان کی چھت گر گئی۔ رفیہ بی بی کا شوہر دل کے عارضے میں مبتلا، خاتون شدید پریشان، غربت کی چکی میں پستے خاندان نے حکومت اور مخیر حضرات سے مدد کی اپیل کر دی۔ اسی پر بات کریں گے عبدالقدیر سے، جی بتائے گا۔ بالکل مہنگائی کے اس دور میں جہاں عام آدمی کا گھر کا چولہا جو ہے وہ چلانا مشکل ہو چکا ہے، تو وہی چنیوٹ کا علاقہ ہے کمر ٹاؤن، جہاں پر ایک خاتون جو کہ اپنے گھر کا چولہا بڑی مشکل سے چلا رہی تھی اور حالیہ ہونے والی بارشوں کے باعث اس کے جو ہے وہ مکان کی چھت گر گئی اور وہ سامان جو ہے وہ
बाहर रखकर खुले आसमान तले रखकर जो है वो अपना गुजारा कर रही है। आज हम उस घर में मौजूद हैं। आप देख भी सकते हैं कि उस खातून का शौहर जो है वो दिल के अर्ज में मुब्तला है और जिंदगी और मौत की कशमकश में है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये 5 बच्चों की वालदा जो है वो शदीद परेशान है। उससे बात करने की कोशिश भी करते हैं। अम्मा जी बताइएगा कि कितने दिन हो गए ये छतगिरी है, कैसे जो है वो आप गुजारा कर रही हैं, क्या करती हैं? साल पूरा हो गया ते छत गिरी ते लोकां दा काम कार करते तो मैं मेरे को हिम्मत ही नहीं है करन। सुबह मैं नाश्ता बच्चों को करवा के ते आप लोकां दा काम करन गई चली उधर मैं उन्हें दवाई दी है तो दवाई खत्म हो गई तो मेरे को पैसे भी नहीं है कि जाके दवाई लिया। बिल्कुल इस खातून की आप बात आपने सुनी, कैसे ये जो है वो दुख और रंज में मुब्तला है और इस मकान की छत गिरी जिसके बायस इनके हालात जो है वो दिन ब दिन बिगड़ते हुए दिखाई दिए और महंगाई के इस दौर में इन्हें जो है वो घर का चूल्हा जलाना भी जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इस वाले से 5 बच्चों की ये वालिदैन है जो कि शदीद परेशान है और हुकूमत से मुखैर हज़रात से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इनकी दाद रसी की जाए, इनको वो तमाम सहूलियात फराहम की जाए ताकि ये तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में हालिया बारिशों ने मुतादिद इलाकों को नदी नालों में तब्दील कर दिया। थाना रजाबाद के बाहर से निकासियाब मुमकिन न हो सकी। फैसलाबाद में गुज़िश्ता रोज होने वाली मूसलाधार बारिश से मुतअद्दिद इलाके नदी नालों में बदल गए। शहर के दीगर अहम इलाकों समेत थाना रजाबाद के बाहर से भी पानी का इखराज न हो सका। दाखिल दरवाजे के सामने बारिशी पानी ने गंदे नाले की सूरत इख्तियार कर ली। पुलिस एहलकारों और साइलिन समेत अहले इलाका भी तशवीश का शिकार हो गए। उनका कहना है कि वासा हुकाम को मुतअद्दिद बार दरखास्त दी लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। गुज़िश्ता 3 माह से यही प्रोसीजर चल रहा है, ऐसे ही पानी यहाँ पे खड़ा हुआ है। वासा वालों को कंप्लेन कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही और ये देखें हमारा सामने हमारा घर है और बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। दूसरी जानिब सदीक अकबर टाउन की ईदगाह पार्क ने भी गंदे जोहड़ की सूरत इख्तियार कर ली। मकीनों का कहना है कि तोअफ़्फ़न और बदबू से ज़हनी अजियत में मुब्तला हैं। 3 महीना हो गए हैं, पहले पानी था फिर बारिश आने लग गई, उसकी वजह से ये बैक्टीरिया ये वो वायरस की वजह से ना हम बहुत परेशान हैं। बच्चे खेलते थे, ख़वातीन आती थी। इलाका मकीनों का कहना है कि गंदगी के बायस बच्चे मुख्तलिफ इमराज का शिकार हो रहे हैं, जबकि पार्क में भी खेलने को तरस गए। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ फरजाना सदीक, फैसलाबाद। मानसून के दौरान सैलाब ज़दा इलाकों में सेफ्टी सप्लाई का काम करने वाले मुलाजमीन को SOPs पर अमल दरामद करना होगा। अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली के मसाइल दूर करने के हवाले से फेस्को ऑपरेशन स्टाफ को खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई। मज़ीद बात करेंगे उवैस अली से, जो उवैस बताएगा क्या हिदायत जारी की गई। जी बिल्कुल, सैलाब ज़दा इलाकों में फेस्को ऑपरेशन स्टाफ बिजली की बिलातौतल फराहमी को यकीनी बनाए। इसी हवाले से फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को खुसूसी हदायत जारी कर दी गई हैं कि तमाम तर ऑपरेशन स्टाफ जो है वो मानसून के दौरान जो सैलाब ज़दा इलाके हैं, जो बारिश से मुतासरा इलाके हैं, उन इलाकों में बिजली की बिलातौतल फराहमी को यकीनी बनाए और जिन मुलाजमीन की जानिब से मानसून के इस मौसम में गफलत का मुजाहरा किया और सार्फिन की शिकायत के अजाले को मुमकिन ना बनाया गया, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन जो है अब वो लिया जाएगा। मज़ीद फेस्को काम का यही कहना है कि फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को मानसून के हवाला से खसूसी हदायत जारी कर दी गई हैं और बिलखसूस जो बारिश से मुतासरा इलाके हैं, सैलाब ज़दा इलाके हैं, वहाँ पर ऑपरेशन स्टाफ को मुतहरिक कर दिया गया है और सार्फिन की शिकायत के अजाले में गफलत का मुजाहरा काबिल कबूल नहीं है। जिन मुलाजमीन की जानिब से बहुत शुक्रिया वैसे तफसीलात से आगाह करने। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से 3 करोड़ सर्जिकल फेस मास्क की दरामद पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई। अमेरिका से दरामद होने वाले मास्क पर कस्टम ड्यूटी और सेल्स टैक्स खत्म। दरामदी मास्क हुकूमत की जानिब से अतिया किया जाएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे उमैर अजमत से। उमैर बताएगा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इस हवाले से इकदाम उठाया गया है और कोविड के बढ़ते हुए केसेस के बायस अमेरिका से जो सर्जिकल मास्क है वो दरामद करने का फैसला किया गया है और इस हवाले से एक फलाही तंजीम की जानिब से यह मास्क अतिया किया जाएगा।
पंजाब हुकूमत को 3 करोड़ मास्क जो है ये अमेरिका से बरामद किया जाएगा और फिर उस NGO की जानिब से ये पंजाब हुकूमत के हवाले किया जाएगा, जिसके बाद ये फैसलाबाद और लाहौर समेत दीगर बड़े शहरों में शहरियों को क्या किया जाएगा। इस हवाले से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से दरामदी मास्क पर आयद होने वाली कस्टम ड्यूटी और सेल टैक्स खत्म कर दिया गया और इस हवाले से एहतियात की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत तफसीलात से आगाह करने के लिए। फेडमिक के इकनॉमिक जोन से मुल्हिका 300 एकड़ अराजी पर बिजनेस पार्क जल्द कायम किया जाएगा। CEO फेडमिक एहतशाम जावेद कहते हैं कि ये पार्क छोटे सरमायाकारों के लिए बेहतरीन मौका है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शेराज भट्ट से। जी शेराज, बताएगा ये पार्क छोटे सनतकारों के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? फेडमिक से मुल्हिका 300 एकड़ पर इस वक्त जो है वो बाकायदा तौर पर जो बिजनेस पार्क की मंजूरी दे दी गई है और फेडमिक CEO के मुताबिक एहतशाम जावेद ने बताया है कि फेडमिक से जो मुल्हिका ये 300 एकड़ की अराजी है इस पर बाकायदा तौर पर बिजनेस पार्क बनाया जाएगा। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी का ये प्रोजेक्ट जो है वो ख़ास तौर पर छोटे इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ा मौका है कि वो भी फेडमिक की इस बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं और स्पेशल इकोनॉमिक जोन का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि इसमें एक गोल्फ क्लब बनाने के साथ साथ एक बड़ी कमर्शियल मार्केट बनाई जाएगी जिसमें दुकानें भी होंगी और कमर्शियल मार्केट होगी बाकायदा तौर पर। वहाँ पर 4 मरले से लेके 8 मरले और 12 मरले तक का प्लॉट जो है वो मौजूद होगा, जिसमें आप कमर्शियल जो है बाकायदा तौर पर अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। CEO फेडमिक एहतशाम जावेद ने बताया है कि ये बड़े सरमायाकारों को अपॉर्चुनिटीज़ और चांस देने के साथ साथ अब जो है फेडमिक ये भी देख रहा है कि छोटे कारोबारी हजरात को बड़े मौके किस तरह से दिए जा सकते हैं कि वो आगे बढ़ें। ख़ास तौर पर अगर फेडमिक के हवाले से बात की जाए, इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी के हवाले से बात की जाए, कायद-ए-आज़म पार्क के हवाले से बात की जाए, तो ये बिज़नेस पार्क जो है ये एक बहुत बड़ी जो है वो एक बहुत बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकता है ख़ास तौर पर कारोबार को फ़रोग देने के लिए। अगर बात की जाए ख़ास तौर पर जो फेडमिक के हवाले से, तो फेडमिक में इस वक्त जो है वो यके बाद दीगर जो है प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त जो है वो जारी है। जिन लोगों ने 2 साल के अरसे के अंदर अपने प्लॉट के ऊपर तामीर शुरू नहीं करवाई है उनके प्लॉट जो है उनको कैंसिल करके दूसरे कस्टमर्स को, डिज़ायर्ड कस्टमर्स को जो है फरोख्त किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि फेडमिक एक तेज़ी से बढ़ने वाला मंसूबा है। लेकिन इसके साथ साथ 300 एकड़ पर जो एक कमर्शियल मार्केट बनाई जा रही है, गोल्फ क्लब बनाया जा रहा है, बाकायदा तौर पर एक जो बिज़नेस पार्क मंजूर किया गया है, बिलाशुबा ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है और ताजर हजरात के लिए, कारोबारी हजरात के लिए, छोटे सरमायाकारों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि बहुत वो शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। हुकूमत टैक्सेस की मद में करंट अकाउंट खसारा कम करने के लिए मुतहरिक हो गई। कमिश्नर FBR राना वकार टोबा टेक्सिंग पहुंचे, जहां ताजिर बरादरी से मुलाकात की और FBR के दायरे में आने की दरख्वास्त की। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद, बताएगा। अगर बात करें हुकूमत की जान से करंट अकाउंट जो खसारा है उसको पूरा करने के हवाले से भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। आज जो है कमिश्नर फैसलाबाद जंग जोन जो है टोबा टेक्सिंग पहुंचे हैं, ताजिर बरादरी के साथ मुलाकात की है और टैक्सेस के हवाले से जो है तबादला ख्याल किया। मेरे साथ मौजूद भी हैं, उससे बात भी सर किस तरह देखते हैं इकदाम भरपूर किए जा रहे हैं ताकि हम मुल्क की मैशत को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके? जी बिल्कुल, इस वक्त तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस है वो इन्फोर्समेंट के ऊपर है। गरचे ये लॉ तो पहले से मौजूद था लेकिन इस पे इन्फोर्समेंट वो कोई इतने रिलीजियसली फॉलो नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब जो है वो पॉलिटिकल विल भी है, डिटर्मिनेशन है फ्रॉम गवर्नमेंट कि हमने ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी करनी है। तो जो भी रिटेलर्स जो टियर 1 में फॉल करते हैं उनके लिए लाजमी है कि वो रजिस्टर होके इंटीग्रेशन करवाएं FBR के साथ। तो जो भी लोग नहीं करेंगे तो हम हमारी तरफ से तो अब जो है वो फुल फोर्स के साथ इम्प्लीमेंटेशन जारी है। हम पेनल्टी भी लगाएंगे 10 लाख की, और अगर उस पे भी वो POS पे इंटीग्रेट नहीं होंगे तो हम डेफिनेटली वो सील भी करेंगे दुकानें। तो किसी किस्म की कोई रायत नहीं है। जो भी लोग इसमें फॉल करते हैं टियर 1 में, मुनासिब यही है क्योंकि मैशत जो है उसके हालात भी आपके सामने हैं, वो ग्रो अब कर रही है, बेहतर इंडिकेटर्स आ रहे हैं। लेकिन जो BTB के हवाले से जो टैक्स नेट की ब्रॉडनिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और POS उसमें बड़ी अहमियत का हामिल है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है ताजिर बरादरी से कि वो खुद हमारे साथ कोऑपरेट करके अगर इस पे आ जाएंगे
تو یہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے، کیونکہ ہمیں خوشی نہیں ملتی کوئی ایکسٹریم قدم لینے پہ نا، اور دکانیں بند کرنے پہ، سیل کرنے پہ، یا کوئی اور پینلٹی لگانے پہ، مطلب ہمارے لیے بھی یہ پینفل ہے. اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ کوآپریٹ کریں اور خود بخود جو ہے جو لا جو ہے اس کے اندر آئیں اور POS کو انٹیگریٹ ہوں. جی بالکل، جس طرح بات سنیں کمشنر کی، اور ان کا کہنا ہے کہ جو ہے تمام تاجر برادری سے درخواست کی جا رہی ہے کہ وہ رجسٹرڈ ہوں تاکہ ہم جو ہے تمام جو معیشت کو بہتر کر سکیں، اور اس کے ساتھ ان کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اب جو ہے سخت ہدایات جاری کی گئی ہیں جس پہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے. جو اگر نہیں رجسٹرڈ ہوگا ان کے خلاف پینلٹی بھی ہو سکتی ہے، دکانیں کاروبار بھی سیل ہو سکتا ہے. بہت شکریہ شاہد محمود تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ورکرز ویلفیئر بورڈ نے فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے ورکرز ویلفیئر اسکول میں طلبہ کو دی جانے والی ٹرانسپورٹ کی سہولت کو ختم کر دیا. اسی پر بات کریں گے جہانگیر اشرف سے. جہانگیر بتائے گا. ورکر ویلفیئر بورڈ کی طرف سے فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے تمام وہ ویلفیئر سکولز جہاں پر مزدوروں کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، وہاں پر بچوں کے لیے پک اینڈ ڈراپ کی جو مفت سہولت تھی اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور اس حوالے سے کل چونکہ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں تعلیمی ادارے دوبارہ کھل رہے ہیں، تو کل سے ورکر ویلفیئر سکولز کے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کی جو مفت سہولت تھی وہ نہیں ملے گی. اس حوالے سے اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور پنجاب ورکر ویلفیئر بورڈ کی طرف سے تمام جو اسکول کے ہیڈز ہیں ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے. فیصل آباد میں بھی 3 ورکر ویلفیئر اسکول موجود ہیں جہاں پر ہزاروں بچے مزدوروں کے زیر تعلیم ہیں، جن کو روزانہ کی بنیاد پر اسکول پک اینڈ ڈراپ کرنے کے لیے مفت بسیں چلائی جاتی تھی. لیکن اس حوالے سے ورکر ویلفیئر بورڈ پنجاب کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئندہ یہ بسیں نہیں چلائی جائیں گی. والدین خود ذمہ دار ہوں گے اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے اور واپس لے جانے کے. اس حوالے سے یقینی طور پر بچوں کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. ورکر کمیونٹی جو تھی وہ دور دراز سے اپنے بچوں کو مفت تعلیم کے حصول کے لیے ورکر ویلفیئر سکولز میں بھیجتی تھی، جہاں پر بچوں کو نہ صرف مفت ٹرانسپورٹ فراہم کی جاتی تھی بلکہ ان کے گھروں کے قریب ترین سے جو پک اینڈ ڈراپ ہے اس کی سہولت موجود تھی. لیکن کل تعلیمی ادارے کھلنے کے بعد سے یہ سہولت جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، اور اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے، والدین کو میسج دیے گئے ہیں کہ کل سے اپنے بچوں کو اسکول خود چھوڑیں گے، خود واپس پک کریں گے، جس کے لیے والدین جو ہیں وہ انتہائی پریشان ہیں. اور اس حوالے سے اس فیصلے پر تنقید بھی سامنے آ رہی ہے، اور والدین کی طرف سے یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو ٹرانسپورٹ ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ تعلیم کش پالیسی ہے. بچوں کے لیے، والدین کے لیے اپنے بچوں کو اسکولوں میں چھوڑنا اور واپس لے جانا مشکل ہوگا، کیونکہ اکثر لیبر کمیونٹی ہے جو کہ کچھ نائٹ کی شفٹوں میں کام کرتے ہیں، کچھ ڈے کی شفٹوں میں کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے اپنے بچوں کو خود اسکول چھوڑنا یا واپس لے جانا مشکل ہوگا. صرف اسی لیے ان کو ورکر ویلفیئر سکولز میں داخل کروایا گیا تھا بچوں کو مزدوروں کی طرف سے کہ وہاں پر پک اینڈ ڈراپ کی سہولت جو ہے وہ مفت فراہم کی جاتی تھی. لیکن اب ورکر ویلفیئر بورڈ کے سیکرٹری کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے پنجاب بھر کے سکولز میں اب بچوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت نہیں ملے گی، جس سے والدین خاصے پریشان ہیں کہ کل سے اپنے بچوں کو کس طرح سے وہ اسکول چھوڑیں گے، کس طرح سے واپس پک کریں گے. کیونکہ فیصل آباد میں صرف 3 ورکر ویلفیئر سکولز ہیں اور دور دراز کے علاقوں سے بچے وہاں پر زیر تعلیم ہیں. ایسے میں یقینی طور پر اگر ٹرانسپورٹ بند کی گئی تو بچوں کو اسکول آنے جانے میں مشکلات کا سامنا ہوگا. اور اس حوالے سے ہیڈز کی طرف سے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اگر ٹرانسپورٹ